ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو، میں ایک عام سی لڑکی ہوں، تمہارے جیسے امیر لڑکوں سے دوستی کر کے اپنی عزت نہیں گنوا سکتی، وہ بے بسی سے کہتی وہاں سے بھاگ نکلی۔ پیچھے آہل سکندر لب بھینچ گیا۔ وہ گھر پہنچی تو اس کا باپ اسپتال میں ایڈمٹ تھا، کیونکہ وہ جس کا ڈرائیور تھا ان پر حملہ ہوا تھا، اور اس کے باپ نے مالک کی جان بچانے خود گولی کھائی تھی، اور پھر اس کے باپ کے مرنے سے پہلے اس معصوم کا نکاح اسی مالک سے ہو گیا تھا، جو کوئی اور نہیں آہل سکندر کا بڑا بھائی مرتضیٰ سکندر تھا، ایک سرد شفاق احساسات سے عاری انسان جو اس سے 11 سال بڑا۔ کلاس میں ہلکی سرگوشیوں اور ورق الٹنے پلٹنے کی آوازوں کے سوا مکمل خاموشی تھی۔ پروفیسر نے ابھی ایک مشکل لیکچر ختم کیا تھا اور بیشتر طلباء نوٹس لکھنے میں مصروف تھے، مگر ایک طرف کھڑکی کے قریب آخری قطار میں ایک دبلی پتلی نازک سی لڑکی بیٹھی تھی۔ عبیر شاہد، کلاس کی سب سے بہترین طالبہ، جسے صرف اپنی زندگی سے ہی سروکار تھا۔ وہ اپنے سامنے کھلی کتاب میں مکمل طور پر گم تھی، جیسے ارد گرد کے ماحول سے یکسر کٹی ہوئی ہو۔ چند لمحے گزرے تھے اور باسط اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، کلاس کا سیار جس کی عزت کرنا سب پر لازم تھی۔ عبیر، اس نے سر اٹھایا اور ناسمجھی سے باسط کی طرف دیکھا۔ باسط نے ایک پل کے لیے نظریں جھکائیں، پھر ہلکی سی کھانسی کر کے بولا، آہل سکندر نے تمہیں کینٹین میں بلایا ہے۔ عبیر کا دل ایک دم زور سے دھڑکا، خوف اور الجھن کے ملے جلے تاثرات اس کے چہرے پر نمایاں ہو گئے تھے۔ کیا؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ باسط نے کندھے اچکائے جیسے وہ خود بھی بے بس ہو۔ مجھے نہیں معلوم کیوں، لیکن اس کا کہنا ہے اگر تم نہیں آئیں تو وہ مسئلہ کھڑا کر دے گا، بہتر ہوگا تم چلی جاؤ، تم جانتی ہو وہ کیسے ہیں۔ عبیر کی آنکھوں میں خوف کی ایک پرچھائی ابھری، وہ پریشانی کے عالم میں کھڑی ہو گئی اور منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، یا اللہ، یہ کون سی بلا میرے پیچھے لگ گئی ہے، خدا کے لیے مجھے اسے نجات دلوائیں۔ کلاس میں بیٹھی لڑکیوں نے ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھا، جبکہ کچھ لڑکے سنجیدہ ہو گئے تھے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ وہ کیسا انسان ہے۔ عبیر ایک معمولی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس کا باپ ایک غریب ڈرائیور تھا، اور وہ خود اسکالرشپ کی بدولت یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی۔ تعلیم اس کے لیے سب کچھ تھی، مگر کچھ دنوں سے آہل سکندر نے اس کی زندگی اجیرن بنا رکھی تھی۔ پہلے وہ راہ میں کھڑا ہو کر اسے دیکھتا رہتا، پھر راستہ روک کر دوستی کی پیشکش کرنے لگا۔ ہر بار وہ سختی سے انکار کر دیتی تھی، مگر وہ باز نہیں آتا تھا، اور اب اس نے CR کو بھیج کر اسے کینٹین بلانے کا نیا حربہ اختیار کیا تھا۔ یہ بات اس کو بہت ناگوار گزری تھی۔ غصے سے اس کے رخسار سرخ ہو گئے۔ وہ تیزی سے کینٹین کی طرف بڑھی، جیسے فیصلہ کر چکی ہو کہ آج حساب برابر کر کے رہے گی، لیکن خود بھی اپنے حالات سے واقف تھی کہ نہ کبھی وہ پہلے کسی سے بدتمیزی کر پائی تھی اور نہ آج کرنے والی تھی، لیکن آج اس کو غصہ بہت آیا تھا۔ یہ انداز اس کو بالکل اچھا نہیں لگا تھا، اسی لیے وہ دندناتی ہوئی گئی تھی۔ کینٹین میں قدم رکھتے ہی اس کی نظر سیدھے سامنے ٹیبل پر پئی، جہاں آہل سکندر آرام سے بیٹھا تھا۔ وہ بلا شبہ بے حد پرکشش تھا، سفید شرٹ کے اوپر ہلکی نیلی جینز، بازو کوہنیوں تک چڑھائے۔ وہ ایک بے حد جاذب نظر شخصیت کا مالک تھا، لیکن اس کی شخصیت میں اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ یہ سب کرنے یونیورسٹی نہیں آتی تھی، وہ یہاں پڑھنا چاہتی تھی اور سکون سے اپنی ڈگری لینا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کب وہ اس شخص کی نظروں میں آ گئی تھی، اور تب سے اس کی زندگی اجیرن ہو گئی تھی۔ عبیر سیدھا اس کے پاس جا کر رکی۔ آہل نے تھوڑا سا آگے ہو کر اسے دیکھتے خوشگوار لہجے میں کہا، بیٹھو نا، کھڑی کیوں ہو؟ اس نے نفرت آمیز نگاہوں سے اس آدمی کو دیکھا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس کا خون پی جائے، لیکن بے حد بے بس تھی۔ وہ تنک کر بولی تھی، نہیں، مجھے جو کہنا ہے کھڑے ہو کر ہی کہوں گی۔ عبیر کا لہجہ سخت تھا۔ آہل نے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ سجا لی۔ پھر کہو۔ عبیر نے گہری سانس لی، جیسے اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہو۔
پھر اس کی آواز میں تھرتھراہٹ در آئی۔ میں بہت غریب گھر کی بیٹی ہوں، میرے بابا ایک ڈرائیور ہیں، خدا کے لیے میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ باقاعدہ ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ آہل کی مسکراہٹ ایک پل کے لیے مدھم پڑی، مگر وہ خاموش رہا۔ میں ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، میری ماں بھی نہیں ہے جو میری وکالت کر سکے، میں صرف ایک باپ کے سہارے زندہ ہوں، خدا کے لیے آئندہ میرے راستے میں مت آنا۔ اس کی آواز اب نم ہو رہی تھی، آنکھیں بھیگی لگ رہی تھی۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کر منت کرتی ہوں، میں عزت کے ساتھ یہاں سے پاس آؤٹ ہونا چاہتی ہوں، خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ اب تھک گئی تھی، اسی لیے بے بسی سے بولی تھی۔ یہ کہتے ہی وہ ایک پل بھی رکی نہیں، بلکہ فوراً پلٹی اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ پیچھے آہل سکندر ضبط سے اپنے ہونٹ بھینچ چکا تھا، اس کی مٹھی خود بخود سختی سے بند ہو گئی تھی۔ آج تک کسی لڑکی نے اسے اس طرح ٹھکرایا نہیں تھا، ہمیشہ وہی سب کے لیے پہلی ترجیح ہوتا، مگر یہ واحد لڑکی تھی جو مسلسل اس کی پیشکش کو مسترد کر رہی تھی۔ آخر ایسا کیا تھا جو یہ لڑکی اسے نظر انداز کر رہی تھی؟ یہ سوچ اب اس کے دماغ میں ہلچل مچا رہی تھی۔ وہ اسے کوئی جذباتی وارفتگی نہیں رکھتا تھا، بس ایک معمولی سی اٹریکشن تھا، لیکن اس کا بار بار انکار اس کی انا پر کاری ضرب کا کام کر رہا تھا۔ کوریڈور میں آتے ہی ہر نگاہ اس پر جم سی گئی۔ آتے جاتے اسٹوڈنٹ اس کو ایسے دیکھ رہے تھے کہ وہ ایک بہت بڑا جرم کر کے آئی ہو۔ اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ سر جھکائے تیز قدموں سے کلاس کی طرف بڑھی، مگر اس کے کانوں میں سرگوشیوں کی سرسراہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ واقعی آہل سکندر سے ملنے گئی تھی۔ تمہیں پتا ہے وہ اس سے خود ملنے گئی ہے، نہ جانے کیا بات ہوئی ہوگی۔ لیکن یہ سرگوشیاں وہ مکمل طور پر نظر انداز کر کے کلاس میں داخل ہو گئی۔ لیکن اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کی تھی تاکہ اس کے تاثرات سے کوئی جانچ نہ سکے کہ وہ اس وقت کس تکلیف میں مبتلا ہے۔ کلاس روم میں بھی ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، سب کی نظریں جیسے چپکے چپکے اس کا تعاقب کر رہی تھیں۔ کچھ لڑکیوں کی آنکھوں میں حیرت تھی، کچھ کی نظروں میں مشکوک تاثرات۔ لڑکوں کے چہروں پر عجیب سے تاثرات ابھر رہے تھے، جسے وہ کسی تماشے کے گواہ بن چکے ہوں۔ وہ چپ چاپ اپنی نشست کی طرف بڑھی، نظریں جھکائے ہوئے۔ دل جیسے بھاری ہو گیا تھا، سانس لینا بھی مشکل محسوس ہو رہا تھا۔ بیٹھتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اندر ایک بے بسی کا طوفان امڈ رہا تھا۔ دل کی یاد دھاڑے مار مار کر روئے۔ اس شخص نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، پوری دنیا کے سامنے بے عزت کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ ایک سکون کی زندگی گزارنا چاہتی تھی، لیکن یہ شخص اسے سکون کا سانس بھی میسر نہیں ہونے دے رہا تھا۔ ابیر، ایک مانوس آواز نے اس کی توجہ کھینچی۔ نور اس کے برابر آ کر بیٹھ گئی۔ یونیورسٹی میں آ کر سب سے پہلی دوستی اسی لڑکی سے ہوئی تھی۔ کیا ہوا تھا؟ نور نے نرمی سے پوچھا۔ ابیر نے سر جھکائے اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے مدھم آواز میں کہا، کچھ نہیں۔ نور نے گہری سانس لی اور سنجیدگی سے بولی، دیکھو مجھ سے کچھ مت چھپاؤ، سب کہہ رہے ہیں کہ تم آہل سکندر سے ملنے گئی تھی۔ میں جانتی ہوں تم ویسی لڑکی نہیں ہو، لیکن بتاؤ تو صحیح وہ کیا چاہتا ہے؟ ابیر کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے بے بسی کی جھلک آئی، مگر وہ اب بھی خاموش تھی۔ نور نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ ابیر، سنو۔ اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ تمہیں آہل سکندر کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ وہ اچھا انسان نہیں ہے، وہ روز نئی لڑکیوں کو پھنساتا ہے، ہر روز کسی نہ کسی کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ پلیز تم اس کے جال میں مت آنا۔ ابیر نے نظریں نہیں اٹھائیں، اس کی آنکھیں نم تھیں، مگر وہ ایک لفظ بھی نہ بولی۔ نور نے بے بسی سے سر جھٹکا۔ تم کیوں کچھ نہیں کہہ رہی؟ میں تمہاری دوست ہوں، مجھے بتاؤ کہ تم ٹھیک ہو۔ ابیر نے گہری سانس لی اور سر اس بات میں ہلا دیا، مگر کچھ نہیں کہا۔ اس کے لیے یہ سب کہنا ممکن نہیں تھا۔ اس نے سب کے چبھتے ہوئے تیروں جیسے سوالات کو نظر انداز کرنے کی ٹھان لی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے خود مضبوط ہونا ہوگا۔
नूर उसकी खामोशी को समझ गई। उसने एक बार फिर आहिस्ता से कहा, बस खुद को मजबूत रखो और किसी भी कीमत पर उस शख्स के करीब मत जाना। अबीर ने नम आंखों से एक नजर अपनी दोस्त पर डाली, फिर आसमान की जानिब निगाह उठा दी। दिल ही दिल में उसने दुआ मांगी कि काश ये तूफान जल्दी थम जाए, क्योंकि इसमें मजीद हिम्मत नहीं थी कि वो लोगों के ताने और जिल्लत को बर्दाश्त करती। वो एक मासूम लड़की थी जिसका ताल्लुक अपने घर से, अपने बाप से और अपनी पढ़ाई से था। इससे ज्यादा वो किसी भी किस्म की दोस्ती या किसी भी किस्म का अफेयर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। पूरा दिन मामूल के मुताबिक गुजरा, लेकिन कुछ देर पहले से उसे अजीब सी बेचैनी होना शुरू हो गई। कहने को आज दिन की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन उसने अपना दिमाग भटका लिया था। लेकिन अब अजीब सी बेचैनी हो रही थी जिसका कोई नाम नहीं था। कई बार उसने यही सोचा कि आहिल सिकंदर की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन वो जानती थी कि ऐसा नहीं है। वो उसको भूल चुकी थी। ये बेचैनी किसी और वजह से थी। रास्ते भर भी वो इसी कश्मकश में मुब्तला रही और अब भी उसकी हालत कुछ बेहतर नहीं थी, लेकिन उसने अपने दिमाग को अब झटक दिया था। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई बुराई आप पर आनी होती है तो खुदा ताला पहले ही आपको आगाह कर देता है। ऐसा ही कुछ उसके साथ हो रहा था, लेकिन वो नादान उस आगाही को समझ नहीं पा रही थी। घर के करीब आते ही अबीर को कुछ गैर मामूली महसूस हुआ। गली में एक अजीब सा शोर था, जैसे कुछ हुआ हो। मोहल्ले के लोग सरगोशियां कर रहे थे, कुछ घरों के दरवाजों से झांक रहे थे और कुछ लोग बेचैनी से दरवाजे के करीब खड़े थे। अबीर का दिल जोर से धड़का। उसने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी और भीड़ को चीरती हुई घर के अंदर दाखिल हुई, क्योंकि वो भीड़ कहीं और नहीं बल्कि उसी के घर के सामने थी। सामने का मंजर देखकर उसके कदम वहीं जम गए। ऐसा लगता था जैसे किसी ने जान जिस्म से खींच ली हो। जमीन पर उसकी सगी पुप्पो जरमीन बेगम बैठी बैन कर रही थी। उनके गिर्द चंद मोहल्ले की औरतें जमा थीं जो उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थीं। उनकी सिसकियां, वो बैन और आहोजारियां, सब कुछ अबीर के वजूद को हिला देने के लिए काफी था। उसका दम निकलने के करीब आ गया था। एक बाप ही तो उसके पास बचा था। क्या वो उसको खो चुकी थी? ये एहसास ही उसकी जान ले चुका था। पुप्पो, अबीर बेख्तियार चीखी और तेजी से उनके पास पहुंची। क्या हुआ? उसने घबरा कर पूछा। दिल बुरी तरह कांप रहा था। जरमीन बेगम ने रोते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। उनकी गिरफ्त मजबूत थी, जैसे अगर छोड़ दिया तो सब कुछ बिखर जाएगा। अबीर को शदीद घबराहट होने लगी। उनकी गिरफ्त से उसे अब घुटन होने लगी थी। दिल में अजीब सा खौफ सरायत कर रहा था। उसने पुप्पो के कंधे थाम कर उन्हें खुद से अलग किया और उनकी आंखों में झांका। पुप्पो, क्या हुआ? उसकी आवाज लरस गई थी। आप इस तरह क्यों रो रही हैं? सब ठीक है ना? बाबा कहाँ हैं? वो ठीक है ना? उसका दिल उसे कुछ न कुछ गलत होने की आगाही दे रहा था। जरमीन बेगम ने अपनी नम आंखों से उसे देखा और कपकपाती आवाज में बोली, बेटा, तुम्हारे बाबा को गोली लग गई है, वो अस्पताल में है। ये अल्फाज नहीं, गोया पिघला हुआ सीसा था। उनके अटकते हुए अल्फाज उसकी पूरी दुनिया पलट चुके थे। एक पल के लिए अबीर को लगा कि उसकी सांस रुक गई है। उसने फटी फटी नजरों से अपनी पुप्पो को देखा, फिर गर्दन घुमाकर मोहल्ले की औरतों पर नजर डाली, जैसे वो तस्दीक चाह रही हो कि ये सच नहीं है, ये सब महज एक बुरा ख्वाब है। बाबा, उसके लब लर्जे, आंखें खुली की खुली रह गईं। पुप्पो, आप यहां क्यों बैठी हैं? आप अस्पताल क्यों नहीं गई? उसने तकरीबन चीख कर पूछा। आंखों में बेबसी के आंसू तैरने लगे। जरमीन बेगम ने कांपते हाथों से उसका चेहरा थाम लिया। बेटा, तुम्हारे पुप्पा अस्पताल गए हैं, लेकिन वो मुझे लेकर नहीं गए। अबीर की बेबसी अब गुस्से में बदलने लगी। वो रोती हुई खड़ी हो गई। हम दोनों चलते हैं, मुझे बाबा के पास जाना है। उसका सांस बंद हो रहा था। ऐसे कैसे वो अपने बाप को अस्पताल में तन्हा छोड़ सकती थी? जरमीन बेगम ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और उठ खड़ी हुई। मोहल्ले की औरतें एक तरफ हट गईं। अबीर ने जल्दी से दरवाजा खोला और तेजी से बाहर निकल गई।
जमीन बेगम उसके पीछे लपकी। उस वक्त अबीर के दिल में सिर्फ एक ही दुआ थी कि बाबा बिल्कुल ठीक हों, कि वो उनकी मुस्कुराती हुई आंखों को दोबारा देख सके, कि ये सब एक बुरा ख्वाब साबित हो और हकीकत में कुछ ना हुआ हो। मगर दिल के किसी कोने में एक अनजाना सा खौफ मौजूद था जो उसके वजूद को बेचैन किए दे रहा था। न जाने क्यों उसे बहुत कुछ गलत होता महसूस हो रहा था। माँ का तो बहुत पहले इंतकाल हो गया था, महज एक बाप ही तो उसकी जिंदगी में बचा था। अगर उन्हें कुछ हो गया तो वो क्या करेगी? ये ख्याल ही उसकी जान लेने के लिए काफी था। अस्पताल के दरवाजे के करीब पहुंचते ही अबीर के कदम डगमगाने लगे। वो अपनी पुप्पो के साथ तकरीबन भागती हुई आई थी, मगर जैसे ही उसने सर उठाकर इमारत पर नजर डाली, एक अजीब सा खौफ दिल में सरायत कर गया। यह अस्पताल बहुत महंगा लग रहा था। ऊंचे शीशे की इमारत, चमकते हुए फर्श और हर तरफ सफेद पोश डॉक्टरों की भाग दौड़। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या उसके बाबा वाकई यहाँ हैं? कैसे मुमकिन है कि एक आम ड्राइवर को इतने महंगे अस्पताल में इलाज मिले? वो जल्दी से रिसेप्शन की तरफ बढ़ी। काउंटर पर मौजूद नर्स ने नजर उठाकर उसे देखा। जी, क्या आपको किसी मरीज के बारे में मालूम करना है? अबीर ने तेजी से कहा। मेरे बाबा जफर साहब, वो यहाँ एडमिट हैं। नर्स ने कंप्यूटर में कुछ टाइप किया, फिर सर उठाकर कहा, आपके बाबा का नाम जफर नहीं है, लेकिन शायद आप मुर्तजा साहब के ड्राइवर जफर की बात कर रही हैं। अबीर ने जल्दी से इस बात में सर हिलाया। नर्स ने गहरी सांस लेकर कहा, वो आईसीयू में है, कॉरिडोर के आखिरी दरवाजे से आगे जाएं। अबीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने फौरन पीछे मुड़कर पुप्पो का हाथ पकड़ा और दोनों तेजी से कॉरिडोर की तरफ दौड़ पड़ी। अस्पताल के तवील कॉरिडोर में रोशनी मध्यम थी। दीवारों पर मुख्तलिफ हिदायत लिखी थी, लेकिन अबीर का ध्यान सिर्फ एक ही तरफ था, आईसीयू का दरवाजा। जैसे ही वो वहां पहुंची, 2 गार्ड्स दरवाजे के आगे खड़े नजर आए। अबीर बेताबी से आगे बढ़ी, मगर गार्ड ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। माफ कीजिए, अभी आप अंदर नहीं जा सकती। अबीर का सबर जवाब दे गया। वो तकरीबन चीख पड़ी, मुझे अंदर जाना है, मेरे बाबा हैं अंदर। जमीन बेगम भी आंखों में आंसू लिए गार्ड से इल्तिजा करने लगी। बेटा, हमें जाने दो, हम सिर्फ देखना चाहते हैं कि वो कैसे हैं। उसी लम्हे एक और गार्ड, जिसकी जेब पर सुल्तान का बैज लगा हुआ था, आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर हल्की सी हमदर्दी झलक रही थी। बीबी, परेशान ना हो, आपके बाबा मुर्तजा साहब को बचाते हुए जख्मी हुए थे, लेकिन डॉक्टरों ने कहा है उनकी हालत बेहतर हो रही है। थोड़ी देर में आप मुलाकात कर सकती हैं। मुर्तजा साहब अंदर ही हैं, आपके बाबा को कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहें। अबीर की सांस बेतरतीब हो गई। उसने बेयकीनी से सुल्तान को देखा, फिर दरवाजे की तरफ मुड़ी। उसके अंदर जाने की शदीद ख्वाहिश थी, लेकिन अब यह मुमकिन नहीं था। सुल्तान ने नरमी से कहा, आप यहां बैठ जाएं, अल्लाह खैर करेगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अबीर की टांगों में जान ना रही। वो करीब पड़ी बेंच पर बैठ गई। जमीन बेगम उसके बराबर में आकर बैठ गई। अबीर ने अपने लरसते हाथ जोड़ लिए, आंखें बंद की और दिल ही दिल में अपने रब से फरियाद करने लगी, या अल्लाह, मेरे बाबा को बचा ले, उन पर रहम कर, मैं उनके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे, मगर जबान पर सिर्फ एक ही दुआ थी, बाबा की जिंदगी की भीख। उसे उन नौकरियों से सख्त नफरत थी जिसमें नौकर अपने मालिकों की जान बचाते हुए मर जाते थे। उसने कई बार अपने बाबा को इस नौकरी से मना किया था, लेकिन नौकरी ना होने की वजह से वो इस नौकरी पर फाइज हुए थे। लेकिन अब जो मंजर उसकी आंखों के सामने आया था, उसे सब कुछ खत्म होता महसूस हो रहा था। अनजाने में ही वो मुर्तजा को अपने बाप का मुजरिम तस्वुर कर रही थी, इस बात से बेखबर कि यही शख्स उसकी जिंदगी और जिस्मो जान का मालिक बनने वाला है। अस्पताल के ठंडे माहौल में अबीर की सिसकियां कॉरिडोर में गूंज रही थी। वो मुसलसल अपने रब से दुआ कर रही थी कि उसके बाबा ठीक हो जाएं। कुछ देर बाद, तकरीबन 1 घंटे के तवील अरसे के बाद, अचानक आईसीयू का दरवाजा खुला और एक डॉक्टर बाहर आया। अबीर साहिबा। वो फौरन खड़ी हो गई, आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। डॉक्टर ने नरमी से कहा,
आप अंदर आ सकती हैं, आपके वालिद आपसे बात करना चाहते हैं। अबीर ने जल्दी से आंखें पोंछी और लरसते कदमों के साथ अंदर दाखिल हुई। कमरे में हल्की सी रोशनी थी और एक मशीन मुसलसल पीप कर रही थी। उसके बाबा बेड पर लेटे थे। उनकी आंखें आधी खुली हुई थी और चेहरा कमजोरी की शिद्दत से जर्द लग रहा था। कमरे में एक और शख्स भी मौजूद था। सफेद शलवार कमीज पहने वो दीवार की तरफ रुख किए खड़ा था, जैसे किसी गहरी सोच में गुम हो। अबीर की नजरें बेख्तियार उस शख्स पर पड़ी, मगर वो चेहरा ना देख सकी। बाबा की मध्यम आवाज सुनकर उसकी तवज्जो फौरन उन पर गई। अबीर, मेरी बच्ची, आओ मेरे पास। वो तेजी से उनके करीब हुई और उनका हाथ थाम लिया। आंखों से आंसू बेख्तियार बहने लगे। बाबा, आपकी तबीयत कैसी है? आप ठीक हैं ना? जफर साहब ने थकी हुई सांस ली। हाँ बेटा, मैं ठीक हूं, मगर मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। अबीर ने फौरन कहा, बाबा आप कुछ मत बोले, बस आराम करें। डॉक्टर कह रहे हैं आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, फिर हम दोनों ढेर ढेर बातें करेंगे। आप इस नौकरी को भी नहीं करेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा था, इस नौकरी में सिर्फ और सिर्फ जान का खतरा है, लेकिन आपको मेरी परवाह ही नहीं। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? कभी आपने मेरे बारे में सोचा है? वो तड़प कर बोली थी, मगर जफर साहब ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। उनकी आंखों में एक अजीब सी संजीदगी थी। वो बमुश्किल बोले, मैं तुम्हारा निकाह मुर्तजा सिकंदर से करवा रहा हूं। ये सुनते ही अबीर का दिल जोर से धड़का। वो साकित खड़ी रह गई, जैसे किसी ने उसकी रूह को हिला दिया हो। बाबा, आप क्या कह रहे हैं? जफर साहब ने हल्की मुस्कुराहट के साथ उसका हाथ दबाया। यही सही है बेटा, मैं जानता हूं तुम्हें हैरानी हो रही होगी, लेकिन मैं जो कर रहा हूं वो तुम्हारी भलाई के लिए है। अबीर के आंसू और तेजी से बहने लगे। नहीं बाबा, मैं कोई निकाह नहीं करूंगी। आप ठीक हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा, फिर हम इस बारे में सोचेंगे। जफर साहब की सांसें जरा भारी होने लगीं, मगर उनकी नजरों में एक बाप की मजबूती थी। बेटा, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। मैं नहीं चाहता तुम अकेली रह जाओ। मैं जानता हूं मुर्तजा साहब तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अबीर ने बेबसी से उनके हाथ को मजबूती से थाम लिया। बाबा प्लीज, मैं ये अभी नहीं कर सकती। मैं किसी मजबूरी का सहारा लेकर किसी ऐसे शख्स का हाथ नहीं थामना चाहती जिसकी बदौलत मेरा बाप इस बिस्तर तक पहुंचा है। आपको ठीक होना होगा, प्लीज ऐसी बातें मत करें। वो रोते हुए बोली थी, इस बात से बेखबर कि जिस शख्स के बारे में वो बात कर रही है वही पीछे खड़ा उसकी हर गौहर अफशानी सुन रहा है। जफर साहब की आंखों में आंसू चमके, मगर वो अपनी बात पर कायम रहे। ये मेरा फैसला है अबीर। उसको लगा जैसे वो जमीन में धंस गई हो। वो इनकार करना चाहती नहीं, मगर अपने बाप की हालत देखकर उसके होंठ सिल गए। कुछ लम्हे वो अपनी सिसकियों को दबाने की कोशिश करती रही। बिलाखिर उसने लरसती हुई आवाज में कहा, ठीक है बाबा, जैसा आप कहेंगे, लेकिन आप वादा करें आप ठीक हो जाएंगे। जबकि वो धीमी आवाज में बोले थे, जो अल्लाह को मंजूर होगा वो हो जाएगा। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। कुछ ही दिन में तमाम इंतजामात पूरे हो चुके थे। मौलवी साहब, गवाह सब आ चुके थे। आईसीयू में ही निकाह का बंदोबस्त किया गया था। अबीर का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वो नहीं जानती थी कि यह सब इतनी जल्दी कैसे हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दुनिया अचानक किसी तूफान की जद में आ गई हो। खामोशी गहरी थी। उसके पास जरमीन बेगम खड़ी थी, आंखों में आंसू लिए। उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जफर साहब क्या करना चाहते हैं। सबकी नजरें उसी पर थीं, मगर वो जमीन पर निगाहें गाड़े बैठी रही। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। मौलवी साहब ने निकाह के अल्फाज कहे और मुर्तजा सिकंदर का नाम लिया। अबीर के दिल में एक बार फिर धड़कन तेज हो गई। वो अब तक उस शख्स को देख नहीं पाई थी जिससे उसकी जिंदगी जुड़ने जा रही थी। मुर्तजा सिकंदर, ये नाम सुनकर अस्पताल के अमले तक की सांसें रुक गई। वो कौन था? वो शख्स जिसका नाम ही लोगों के लिए खौफ की अलामत था। ऊंचा लंबा कद, चौड़ी जिसामत, मजबूत कसरती बदन
और ऐसा चेहरा जो एक बार देखने के बाद भुलाया ना जा सके। वो बला का हसीन था, मगर उसके चेहरे पर जज्बात नाम की कोई चीज नहीं थी। आंखों में अजीब सा सन्नाटा, लबों पर सख्ती और बदन में एक ऐसा रोब कि सामने खड़े शख्स की हिम्मत जवाब दे जाए। मुर्तजा, वो अपने सख्त अंदाज में कुर्सी पर बैठा था। वो बिल्कुल खामोश, बिल्कुल बेहिस, जैसे ये सब उसके लिए मामूली बात हो। वो बेबसी की मूरत बनी बैठी थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मौलवी साहब ने उसे पुकारा, बेटी, क्या आपको ये निकाह कबूल है? अबीर की आंखों से मजीद आंसू बहने लगे। लब कांप रहे थे, दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। नजर सामने बैठी उस शख्सियत पर पड़ी जो पत्थर की मूरत लग रही थी। उसके पास कोई जज्बात नहीं थे, कोई एहसास नहीं था। मौलवी साहब ने दूसरी बार पूछा, बेटी, निकाह कबूल है? अबीर ने लरसते हुए लबों के साथ आंखें बंद कर ली। बाबा के चेहरे का ख्याल आया, उनकी हालत याद आई। लब कांपे और बमुश्किल निकला, कबूल है। कमरे में मौजूद हर शख्स ने जैसे एक लंबी सांस ली, मगर वो शख्स जिसके नाम के साथ अब उसका नाम जुड़ गया था, वो वहीं बैठा था। उसी बेहिस अंदाज में मौलवी साहब ने आखिरी बार दोहराया, बेटी, निकाह कबूल है? अबीर ने हिचकियों के दरमियान एक बार फिर वही अल्फाज दोहराए, कबूल है। निकाहनामे पर साइन करके वो अपना सर झुका गई थी। मौलवी साहब का रुख अब मुर्तजा की जानिब था। मुर्तजा सिकंदर, क्या आपको ये निकाह कबूल है? कमरे में एक लम्हे के लिए गहरी खामोशी छा गई। फिर एक सख्त जज्बात से आरी आवाज उभरी, कबूल है। यह आवाज नहीं बल्कि एक फैसला था, एक हुक्म था। ऐसी आवाज थी जिसमें ना नरमी थी, ना तासुर, ना खुशी, ना कोई जज्बात। उसने 3 बार इसी अंदाज में कबूल है बोला था और निकाहनामे पर साइन कर दिया था। दुआ के लिए हाथ उठाए गए और चंद लम्हों बाद आमीन की गूंज उठी। निकाह मुकम्मल हो चुका था, मगर वो जानती थी ये निकाह नहीं, ये कैद थी। और उस कैद का मालिक वो शख्स था जिसके सीने में दिल नहीं बल्कि पत्थर था, मगर अभी फिलहाल उसे अपने बाप की परवाह थी जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। निकाह हुए चंद ही लम्हे गुजरे थे कि अचानक जफर साहब की तबीयत बिगड़ने लगी। मॉनिटर पर चलती रायनें बेतरतीब हो रही थी। डॉक्टर्स और नर्सें भागते हुए उनको संभालने लगे। सब बाहर चले जाएं, फौरन। डॉक्टर की सख्त आवाज सुनकर सब पीछे हट गए। अबीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। बाबा को क्या हो रहा था? वो क्यों इतने बेबस लग रहे थे? बाबा! वो चीखने के करीब थी, मगर गार्ड ने नरमी से उसे पीछे कर दिया। सब लोग बाहर आ चुके थे, लेकिन एक शख्स अंदर ही रहा, मुर्तजा सिकंदर। वो खामोशी से दरवाजे के पास खड़ा था, जैसे ये सब उसके लिए खास मायने रखता हो। उसी की वजह से ये आदमी मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा था। वो उससे गाफिल नहीं हो सकता था। अबीर की नजरें मुसलसल दरवाजे पर जमी थी। आंसू उसके रुखसारों पर बह रहे थे। अल्लाह, मेरे बाबा को कुछ मत होने देना। मैं कुछ नहीं जानती, बस मेरे बाबा को बचा लो प्लीज। उसकी हिचकियां पूरे कॉरिडोर में गूंज रही थी। वो कभी हाथ उठाकर दुआ मांगती, कभी दरवाजे को घोरती, जैसे आंखों ही आंखों में डॉक्टर्स को कह रही हो कि उन्हें बचा ले। वक्त जैसे थम सा गया था। हर गुजरता लम्हा उसके दिल पर ज़रबें लगा रहा था। फिर ठीक आधे घंटे बाद दरवाजा खुला। डॉक्टर्स बाहर आए। उनके चेहरों पर वही रिवायती संजीदगी थी जो हमेशा बुरी खबर की अलामत होती है। हम माजरत चाहते हैं, हम जफर साहब को नहीं बचा सके। आई एम सॉरी, डॉक्टर ने प्रोफेशनल अंदाज में कहा, मगर उस एक जुमले ने अबीर की दुनिया को पलट कर रख दिया। नहीं, ये झूठ है, आप झूठ बोल रहे हैं। मेरे बाबा को कुछ नहीं हुआ। वो आगे बढ़ी जैसे अंदर जाकर खुद उन्हें जगा लेगी, मगर नर्स ने नरमी से उसे रोक लिया। बेटा सब्र करो। किसी ने उसे दिलासा देना चाहा, मगर वो चीख उठी, क्या सब्र करूं? मेरे बाबा। वो बेबस हो चुकी थी। उसकी टांगों ने उसका साथ छोड़ दिया। वो वहीं जमीन पर गिर गई। दोनों हाथों से चेहरा ढांप लिया। दर्द की शिद्दत इतनी ज्यादा थी
کہ सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बाबा, आपने वादा किया था मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। बाबा, मुझे क्यों छोड़ दिया? उसकी चीखें अस्पताल की राहदारियों में गूंज रही थी। मुर्तजा सिकंदर दरवाजे के करीब खड़ा था, खामोश, संगदिल, लेकिन पहली बार उसको इस लड़की का दर्द देखकर दिल में कुछ हुआ था। उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार आए थे, लेकिन वो फौरन ही खुद पर काबू पा गया। बहुत मुश्किल से ज़रबीन बेगम ने उसको संभाला था, वरना वो किसी के काबू में नहीं आ रही थी। घर के आंगन में सफ़े मातम बिछी हुई थी, हर तरफ खामोशी और आंसुओं की फिजा थी। जफर साहब की मैयत सामने रखी थी, सफ़ेद चादर में लिपटी, जैसे नींद में हो, मगर ये नींद कभी ना ख़त्म होने वाली थी। अबीर मैयत के करीब बैठी थी, उसके आंसू मुसलसल बह रहे थे। बाबा, बाबा उठे ना, देखिए मैं यहाँ हूँ, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? वो बैन कर रही थी। ज़मीन बेगम उसे थपक रही थी, मगर खुद भी ज़ब्त की आखिरी हदों पर थी। पुप्पो, मुझे बाबा के पास रहने दें। अबीर फूट फूट कर रो रही थी। ज़मीन बेगम ने उसे सीने से लगा लिया। बस बेटा, सब्र करो, अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहो। मगर सब्र कहाँ था, कैसे होता? घर में मौजूद हर शख्स का दिल बोझल था। कल तक जो जफर साहब हंसते मुस्कुराते थे, आज वो खामोशी से लेटे थे। फिर जनाजा उठाने का वक्त आया। 4 अफराद मैयत को कंधा देने आगे बढ़े और उन्हीं में एक शख्स मुर्तजा सिकंदर भी था। ऊंचा लंबा, चौड़े शाने, मजबूत जिसामत, सख्त चेहरे पर कोई जज्बात नहीं, जैसे दुख और गम उसके करीब से भी ना गुजरे हों। अबीर की नजरें पहली बार उसके चेहरे पर पड़ी। वो साकित रह गई। यही शख्स था जिसके साथ उसका निकाह हुआ था, वो जो इस वक्त भी पत्थर की मानेंद बेहिस खड़ा था। मैयत कंधों पर उठा ली गई। अबीर तड़प कर आगे बढ़ी। बाबा, बाबा, मुझे आखिरी बार उन्हें छूने दो। वो लपक कर मैयत की तरफ बढ़ी, मगर ऐन उसी लम्हे मुर्तजा की करख्त आवाज गूंजी, खबरदार, पीछे हट जाओ, अंदर चली जाओ फौरन, अब एक आंसू ना गिरे। उसका लहजा निहायत सख्त था। अबीर की सांस रुक सी गई। उसकी धाड़ में ऐसी सख्ती थी कि उसके कदम वहीं जम गए। वो कांपने लगी। ज़मीन बेगम ने तेजी से आगे बढ़कर उसे संभाल लिया। अबीर बेटा, मत जाओ, उन्हें जाने दो। ज़मीन बेगम की आवाज़ भर्राई हुई थी। मुर्तज़ा ने एक नज़र उस पर डाली, मगर उसके तासुरात में कोई नरमी न आई। वो वापस मुड़ा और कंधा थामे जनाजा लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। घर का सहन जैसे एक बार फिर सुन हो गया। औरतें आहिस्ता आहिस्ता आंसू पोंछने लगी, मगर अबीर की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जैसे ही जनाजा दरवाजे से बाहर निकला, अबीर के अंदर कोई चीज टूट गई। वो शिद्दत से चीखी, बाबा मत जाएं, मुझे भी ले जाएं। और अगले ही लम्हे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसका वजूद डोलने लगा और फिर वो जमीन पर गिर गई। अबीर, ज़मीन बेगम ने उसे संभालने की कोशिश की, मगर वो होशो हवास खो चुकी थी। पूरा घर मातम में डूब चुका था। अब सब खत्म हो गया था। पूरा खानदान बिखर गया था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। उसको तकरीबन 2 घंटे बाद होश आया। अबीर की आंख धीरे धीरे खुली। उसकी पलकें बोझल थीं, जैसे नींद ने अभी तक उसे जकड़ रखा हो। लेकिन जैसे ही उसने इर्द गिर्द देखा, एक झटके से उठ बैठी। ये कमरा, ये घर, ये उसका नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली और याददाश्त जैसे बिजली की तेजी से लौट आई। बाबा की मौत, निकाह, मुर्तजा सिकंदर, ये सब ख्वाब नहीं था। वो फौरन बिस्तर से उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। दरवाज़ा खोलने ही वाली थी कि वो अचानक कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन बेध्यानी में वो पूरी कुव्वत से उसके सख्त सीने से टकराई थी। वो जमीन बोस होती, उससे पहले उसे जमीन पर गिरने से पहले ही थाम चुका था। इस अचानक उफ्ताद पर वो बुरी तरह बौखलाई थी। अबीर ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा, जैसे वो एक झटके से उसको सीधा कर गया था। चंद लम्हे दोनों के दरमियान खामोशी हायल रही और फिर वो सख्त लहजे में बोला, तुम्हें अब यहीं रहना है, ये बात जहन नशीन कर लो। मुझे नखरे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है।
बीवी हो तुम मेरी। जफर साहब तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरे सर डालकर गए हैं और मैं अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज नहीं करता। अबीर ने होंठ खोले। वो चीखना चाहती थी, एहतजाज करना चाहती थी, बताना चाहती थी कि वो इस बंधन के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उस आदमी के लहजे में जो कतियत और हुक्म था, उसने इसकी जबान को जैसे मफलूज कर दिया। मुर्तजा की नजरों में कोई नरमी नहीं थी, कोई एहसास नहीं था, जैसे ये सब उसके लिए कोई आम सा मामला हो। वो 2 कदम उसकी तरफ झुका, उसके करीब आकर बोला, यूनिवर्सिटी जाना है तो जा सकती हो, लेकिन मुझे तुम्हारी तरफ से कोई कंप्लेन नहीं चाहिए। किसी चीज की कमी नहीं होगी यहां, लेकिन अपनी हुदूद में रहना। अबीर की आंखों में आंसू चमकने लगे। उसने आंखें झुका ली। दिल चाहा उसे खूब सख्त जवाब दे, लेकिन अल्फाज उसके लबों से बाहर ना निकल सके। एक बेबस सर्द आ भरकर उसने सर झुकाकर बस इतना कहा, हां। ये एक ऐसा हां था जो सिर्फ लफ्जों में था, रूह में नहीं। मुर्तजा ने एक नजर उस पर डाली जैसे ये तवक्को के ऐन मुताबिक था। वो बगैर कुछ कहे दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया, जबकि अबीर एक बार फिर अपने नए कैद खाने के अंदर बेयकीनी की कैफियत में खड़ी रह गई। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। 1 हफ्ता गुजर चुका था। ये 7 दिन अबीर ने अपने कमरे में खुद को कैद रखकर गुजारे थे। न किसी से बात की, न किसी से मुलाकात की। आंखों की नमी खुश्क हो चुकी थी, मगर दिल की उदासी वैसी ही थी। जरमीन बेगम से उस दौरान उसकी रोज बात होती थी। उन्होंने इसका साथ नहीं छोड़ा था। कहने को उसकी पुप्पो बहुत गरीब औरत थी, लेकिन उसके बावजूद वो रोज उससे मुलाकात के लिए आती। मुर्तजा ने भी उन्हें रोका नहीं था, क्योंकि जानता था कि अभी अबीर को उनकी जरूरत है। और फिर वो उसके सामने नहीं जा सकता था, क्योंकि जानता था वो लड़की उससे नफरत करती है और इस वक्त उसे अपने के किसी सहारे की जरूरत थी, और उसने वो सहारा नहीं छीना था। आज वो पहली बार कमरे से बाहर निकली। यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार होकर नीचे आई। उसका चेहरा वीरानी में ढला हुआ था, जैसे जिंदगी का रंग कहीं खो चुका हो। जरमीन बेगम ने ही उसको समझाया था कि अपनी यूनिवर्सिटी को स्टार्ट करो, अपनी तालीम को इस तरह जाया मत करो। तुम्हारे बाप ने तुम्हारी तालीम मुकम्मल करने के लिए बहुत जिद्दोजहद की है। अगर आज तुम उनकी रूहों को सुकून पहुंचाना चाहती हो तो अपने और उस ख्वाब को पूरा करो जो तुमने अपने बाप की जिंदगी में देखे थे। सीढ़ियां उतरते ही मुलाजमा करीब आई और धीमे लहजे में बोली, बीबी जी, साहब ने आपको ड्राइंग रूम में बुलाया है। इरादा उसका फौरन यूनिवर्सिटी निकलने का था, लेकिन इस हुक्म पर वो दांत पीस कर रह गई। उसके दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई। पूरे हफ्ते में वो मुर्तजा से एक बार भी नहीं मिली थी। उसके सख्त लहजे और बेरहम आंखों की याद ने उसके कदम रोक लिए, मगर फिर भी वो आहिस्ता आहिस्ता चलती ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। वहां दाखिल होते ही नजर मुर्तजा पर पड़ी। स्याह 3-piece सूट में वो बेहद शानदार लग रहा था, मगर उसकी आंखों में वही सर्द मेहरी थी जो हमेशा दिखाई देती, लेकिन आज चेहरे पर नरमी के तासुरात जगमगा रहे थे। बैठो, मुर्तजा की आवाज कमरे में गूंजी। वो धड़कते दिल के साथ कुर्सी घसीट कर बैठ गई। दिल तो बिल्कुल उसके साथ बैठने का नहीं था, लेकिन मजबूर थी। यही वाहिद शख्स था जिसके रहमो करम पर अब उसे अपनी जिंदगी गुजारनी थी। यही वजह थी कि वो कोई बहाना नहीं कर पाई थी। खामोशी से उसके साथ बैठ गई। मुर्तजा ने उसे बगौर देखा। तबीयत कैसी है? ऐसा सवाल वो पहली बार किसी से कर रहा था। उसने तो जैसे अब लोगों के हालात पूछना भी छोड़ दिए थे। वो अपनी जिंदगी में इतना गुम हो गया था कि उसे किसी से सरोकार नहीं था, लेकिन जानता था ये लड़की उसकी है, उसी की मलकियत है, उसकी बीवी है, उसके जिस्म का हिस्सा है। उसका ख्याल रखना इस पर लाजिम है। अबीर ने निगाहें झुका ली। ठीक हूं, खाना खाओ, वो हमवार लहजे में बोला जैसे हुक्म सुना रहा हो। मुझे भूख नहीं है, उसने धीरे से जवाब दिया। मुर्तजा ने चम्मच प्लेट में रखते गहरी सांस ली, फिर सपाट लहजे में बोला, भूखे रहने से मरा हुआ शख्स वापस नहीं आ जाता। खाने से इनकार मत करो, अल्लाह ताला नाराज होते हैं रिस्क को देखकर मुंह फेर लेने वालों से। ये सुनकर अबीर के दिल में एक शदीद चुभन उठी। वो बाप की मौत पर सब्र किए बैठी थी, और ये शख्स
किस कदर सफाकी से उसे ये जतला रहा था कि भूख हड़ताल करने से कुछ नहीं बदलता। आंखें भर आईं, मगर उसकी डांट के खौफ से उसने खामोशी से चंद नवाले खाने शुरू कर दिए। खाने के बाद वो जल्दी से जाने के लिए खड़ी हुई। मुर्तजा ने एक नजर उस पर डाली और कहा, तुम मेरे साथ जाओगी? वो यकदम रुक गई। मगर मैं खुद जा सकती हूं। मुर्तजा ने कुर्सी से टेक लगा ली। ये बहस का वक्त नहीं है, मैंने जो कहा है वही होगा। मेरे सामने बेवजह बातें करके अपना वक्त जाया मत करो। मैं जो कहता हूं वही इस घर में होता है, और तुम भी वही करोगी जो मैं कहूंगा। इसीलिए अपनी सोचें और अपने अंदाज अपने तक महदूद रखो। अबीर ने गुस्से से उसे घूरा, मगर उसकी शख्सियत के रोब के सामने कुछ ना बोल सकी। खामोशी से सर झुकाकर खड़ी हो गई। मुर्तजा ने हाथ में घड़ी सीधी की और कहा, चलो देर हो रही है, जबकि वो भी पांव पटकते उसके साथ बाहर की तरफ बढ़ी थी। हालांकि दिल तो बिल्कुल ऐसा करने के लिए रजामंद नहीं था, लेकिन मजबूर थी, क्योंकि अब उसके पास सिवाय इस आदमी के और कोई सहारा नहीं था। गाड़ी तेजी से शहर की सड़कों पर रवां दवां थी। अंदर एक खामोशी हायल थी, जैसे दोनों के दरमियान कोई अनजानी दीवार खड़ी हो। अबीर खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में हैरत के आसार नमूदार हुए जब रास्ते बदलने लगे। ये यूनिवर्सिटी का रास्ता नहीं था। हालांकि उसने गाड़ी में बैठते ही उसे यूनिवर्सिटी का नाम और पता बता दिया था, लेकिन अब गाड़ी को दूसरी तरफ जाता देखकर वो थोड़ा सा परेशान हुई। लेकिन पहचानी हुई गलियां, जाना पहचाना रास्ता। मुर्तजा सिकंदर की गाड़ी उसके पुराने घर की तरफ जा रही थी। दिल बेख्तियार धड़कने लगा। क्या हो रहा था? वो घबराकर रुख मोड़कर उसे देखने लगी। हम यहां क्यों आए हैं? उसने मध्यम लेकिन परेशान कुन लहजे में पूछा। मुर्तजा ने कुछ नहीं कहा, बस एक नजर उस पर डाली और गाड़ी उसके घर के सामने झटके से रोकी थी। दरवाजा खोलकर बाहर निकला। वो लम्हा भर तजब्जुब का शिकार रही, लेकिन फिर वो भी आहिस्ता बाहर निकल आई। यही तो उसका घर था, लेकिन अजनबी लगने लगा था। चंद दिनों में सब कुछ कितना बदल गया था। दरो दीवार पर वीरानी छाई हुई थी। वो दरवाजा जिसे उसके बाबा खोला करते थे आज बंद था। वही सहन जिसमें बाबा की हंसी गूंजती थी अब सुनसान था। वो उसे लिए अंदर आ गया। पूरे घर को नम आंखों से देख रही थी। पुरानी यादें लम्हे में ताजा हो गईं। मुर्तजा ने आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रखा। वो चौंक कर उसे देखने लगी। चंद लम्हे बाद वो मध्यम लहजे में बोला, दिल में जो भी गुबार है निकाल दो। मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस सुनूंगा। अबीर ने साकित नजरों से उसे देखा। कहो अबीर, जो भी दर्द है निकालो। उसका लहजा सख्त था, मगर नरमी का तासुर लिए हुए। अबीर की आंखों में मौजूद आंसू बहने लगे। कैसे निकालूं? वो रूहांसी हो गई। मेरे बाबा चले गए, कैसे निकालूं दिल का दर्द? मुर्तजा ने एक गहरी सांस ली और उसे नरमी से देखते हुए बोला, ये सब अल्लाह की रजा है। जिंदगी और मौत का फैसला हमारे हाथ में नहीं। जफर साहब की तकदीर लिखी जा चुकी थी। नहीं, वो अचानक बिलक उठी और एक झटके से उसके सीने से जा लगी। ये अमल बहुत अचानक हुआ था, जबकि मुर्तजा अपनी जगह पर साकित हो गया था। जिंदगी में दूसरी बार अब उसका दिल जोर से धड़कने लगा था। मुजारो कतार रो रही थी, शिद्दत से, टूट कर, जैसे बरसों की थकन थी जो अब आंसू भरकर बह रही थी। आपने क्यों मेरे बाबा को मरने दिया? उसने मुर्तजा के सीने पर मुक्का मारा। आप अंदर थे, आप उन्हें बचा सकते थे, फिर क्यों नहीं बचाया? मुर्तजा की आंखों में लम्हे भर के लिए एक साया सा लहराया, मगर वो खामोश रहा। सुल्तान भाई कह रहे थे कि आप उनको बचा सकते हैं, मगर मेरे बाबा। उसकी हिचकियां तेज हो गईं। मुर्तजा ने धीरे से उसके सर पर हाथ फेरा। अबीर, हम इंसान हैं, खुदाई नहीं कर सकते। जो होना था वो हुआ। कुरान में लिखा है, कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। अबीर हिचकियों में डूबी हुई से सुन रही थी। अल्लाह ने जो फैसला किया वो हम बदल नहीं सकते। तुम्हारे बाबा के जाने का दुख मैं भी समझ सकता हूं, मगर तुम्हें सब्र करना होगा। वो उसे बिल्कुल बच्चों की तरह समझा रहा था।
اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس طرح سے ایک لڑکی کے لیے خود کو جھکائے گا۔ وہ کچھ لمحے خاموشی سے اس کے سینے سے لگی رہی۔ آنسو اس کی قمیض میں جذب ہو رہے تھے۔ بابا کے بغیر کیسے جیوں گی؟ زندہ رہنے کے لیے صبر کرنا پڑے گا۔ اس کا لہجہ نرم مگر مضبوط تھا۔ اور تم اکیلی نہیں ہو عبیر، میں ہوں، تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ہر وقت ہے۔ تم کیوں خود کو اکیلا محسوس کرتی ہو؟ وہ اس سے 11 سال چھوٹی تھی۔ وہ جانتا تھا لڑکیوں کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے، وہ بہت حساس ہوتی ہیں، اسی لیے وہ بہت طریقے سے اسے سمجھا رہا تھا۔ یہ سن کر وہ لمحہ بھر کے لیے ساکت ہو گئی۔ کیا واقعی وہ اس کی زندگی میں تھا؟ کیا وہ واقعی اس کا سہارا بن سکتا تھا؟ مرتضیٰ نے اس کے آنسوؤں کو دیکھا اور دھیرے سے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اب ہم چلیں؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر سر ہلا دیا۔ شاید وہ حقیقت کو قبول کرنے کی پہلی سیڑھی پر چڑھ رہی تھی، یا شاید پہلی سیڑھی سے زیادہ چڑھ چکی تھی۔ اسے واقعی اپنا دل بہت ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے واقعی کسی ایسے کی ضرورت تھی جو اس کا سہارا بن سکے، اسے اپنا سکے، اور شاید اسے وہ سہارا مل چکا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 1 ہفتے کا عرصہ بیت گیا تھا، اور اس 1 ہفتے کے درمیان عبیر نے جیسے اپنی زندگی جی لی تھی۔ مرتضیٰ نے اس دن کے بعد اسے تنہا بالکل نہیں چھوڑا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کو اکیلے نہیں چھوڑ پا رہا تھا۔ لاؤنج میں مدھم روشنی کا راج تھا۔ گھڑی کی ٹک ٹک، کبھی کبھار باہر سے آتی ہوئی ہوا کی سرسراہٹ، اور دور کہیں کسی پرندے کی مدھم سی آواز، سب کچھ خاموشی کی چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ عبیر اور مرتضیٰ خاموشی سے بیٹھے تھے، ایک دوسرے سے چند قدم کے فاصلے پر، مگر یہ خاموشی بے کیف نہیں تھی۔ اس میں ایک عجیب سا سکون تھا، ایک نرمی، ایک تسلی، جیسے الفاظ کی ضرورت ہی نہ ہو۔ عبیر نے آہستہ سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح سخت تھا، لیکن ایک عجیب سا سکون بھی تھا جو کبھی پہلے محسوس نہیں ہوا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مرتضیٰ نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کے لمس میں ایک عجیب سی لرزش تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر الفاظ ساتھ نہ دے رہے ہوں۔ میرے بابا بتاتے تھے کہ آپ بہت سخت مزاج انسان ہیں، اس نے نرمی سے کہا، لیکن آپ نے میرے ساتھ تو بہت اچھا رویہ رکھا، ایسا کیوں؟ مرتضیٰ نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں جھانکا، پھر ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ زندگی میں شاید کئی برسوں بعد عبیر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ حیران تھی کہ سخت گیر، بے رحم کہلانے والا یہ آدمی مسکراتے ہوئے کتنا خوبصورت لگتا تھا۔ کچھ لوگ خاص ہوتے ہیں عبیر، اس نے دھیمے لہجے میں کہا، ان کے ساتھ سخت مزاجی نہیں چلتی، اور خاص کر بیویوں کے ساتھ تو بالکل نہیں۔ عبیر نے نظریں جھکا لی۔ اس کا دل عجیب سی خوشی سے لبریز ہو رہا تھا، جیسے کسی انجان خوشبو نے اس کے وجود کو چھو لیا ہو۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں عبیر، مرتضیٰ کی آواز گونجی تو وہ چونک گئی، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ محبت؟ ہاں محبت، وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کا رشتہ ہی ایسا بنایا ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو وہ خود ہی محبت کے چند قطرے اس رشتے میں ڈال دیتا ہے۔ عبیر کی پلکیں لرزنے لگی۔ سب صحیح کہتے ہیں کہ میں احساسات سے آری ہوں، لیکن شاید تم نے مجھے بدل دیا ہے، اس نے سچائی سے اعتراف کیا۔ تمہاری معصوم صورت، تمہارا با اخلاق رویہ، تمہاری خوشی میں چھپی چیخیں، سب کچھ میری سنگدلی کو پگھلا چکا ہے۔ وہ کافی کھلے اظہار کا مالک تھا۔ عبیر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ بے اختیار مسکرائی اور آہستہ سے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ یہ لمحہ شاید زندگی کا سب سے حسین لمحہ تھا، جیسے ساری اذیتیں، سارے دکھ لمحہ بھر میں ختم ہو گئے ہوں۔ لیکن عین اسی وقت دروازہ کھلا اور آہل سکندر اندر آیا۔ مبارک ہو، اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ عبیر جھٹکے سے پیچھے ہٹ گئی، جیسے کوئی اسے دیکھ لے گا تو سب کچھ بکھر جائے گا۔ اس نے آہل کو دیکھا اور ایک انجانی حیرانی نے اسے گھیر لیا۔ وہ یہاں کیوں آیا تھا؟ مرتضیٰ نے مسکرا کر اس کی مبارکباد قبول کی، لیکن آہل کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خالی پن تھا،
जैसे वो बहुत कुछ कह रहा हो मगर लफ्जों में नहीं। अबीर ने एक नजर मुर्तजा को देखा, फिर आहिल को। कुछ था जो वो समझ नहीं पा रही थी मगर महसूस जरूर कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुर्तजा भाई का छोटा भाई हूं, आहिल सिकंदर। बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में अपना तारुफ करवाया। जब भाई का निकाह हुआ था तब मुझे पता चल गया था, आहिल ने आहिस्ता से कहा। फिर उसने एक आखिरी नजर अबीर पर डाली, जैसे कोई पुरानी यादों को अलविदा कह रहा हो, और खामोशी से पलट कर चला गया। अबीर ने बेइख्तियार उसकी पुश्त को देखा। ये कैसा राज था, ये कैसा लम्हा था, मगर मुर्तजा खामोशी से उसे देख रहा था, जैसे सब कुछ जानता हो, जैसे उनके दरमियान हर खला पुर हो चुका हो। वो उसकी जानिब देखते हुए बोली थी, मुझे उनके बारे में कुछ बताना है। मगर वो सर नफी में हिलाते उसे अपने करीब कर गया और उसके माथे पर मोहब्बत भरा बोसा देते हुए बोला, मुझे सब मालूम है मेरी जान, तुम बेफिक्र रहो, बस सिर्फ मुझ पर तवज्जो दो। उसकी बात सुनकर वो खिलखिलाई थी और उसके सीने पर एक बार फिर सर रखकर अपनी खुशियों भरी जिंदगी को देखने लगी थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें